रिलायंस एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस ग्रुप के विस्तार का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने डीप टेक कंपनी बनाने और निवेशकों के हित में बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दशक के अंत तक कंपनी मौजूदा साइज से बढ़कर डबल हो जाएगी। निवेशकों के लिए भी एजीएम से खुशखबरी आई है। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि 5 सितंबर को कंपनी बोर्ड बैठक में 1 पर 1 शेयर देने पर विचार करेगी। भारत में एआई के विस्तार के प्लान का भी जिक्र किया है। दिवाली से एआई क्लाउड सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। 100 जीबी तक फ्री क्लाउड स्टोरेज और जियो होम के बारे में बताया। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल पर भी बड़े ऐलान हुए हैं। साथ ही रिलायंस रिटेल को लेकर ईशा अंबानी पीरामल ने कहा कि रिटेल बिजनेस 3 से 4 साल में 2 गुना हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने 2047 तक विकसित भारत बनने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित होने के लिए हमें कई सारी रिलायंस जैसी कंपनियों की जरूरत है। In a world of many uncertainties, the continued rise of New India is an absolute certainty. No force on earth can stop our beloved nation's march towards the goal of Viksit Bharat. I know that the people of India have great expectations from Reliance. And from this platform of the AGM, I assure my fellow countrymen that we are determined to exceed your expectations. I also know that India needs vastly more entrepreneurs, both big and small, so that we can fulfill people's rising aspirations for a better life. Indeed, India needs dozens of Reliance so that we can build an inclusively prosperous and fully modern developed nation by 2047. जियो के हर प्रोडक्ट पर अब एआई का इस्तेमाल होने लगा है। जियो ब्रेन का भी जिक्र मुकेश अंबानी ने किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस के भीतर जियो ब्रेन का इस्तेमाल बढ़ेगा। दिवाली से जियो एआई क्लाउड भी शुरू होगा। To streamline AI adoption, Jio is developing a comprehensive suite of tools and platforms that span the entire AI life cycle. We call this Jio Brain. Jio Brain enables us to accelerate AI adoption across Jio, driving faster decisions, more accurate predictions, and better understanding of customer needs. We are also starting to use Jio Brain to drive a similar transformation across other Reliance operating companies and to fast-track their AI journey as well. I anticipate that by perfecting Jio Brain within Reliance, we will create a powerful AI service platform that we can offer to other enterprises as well. I am announcing that Jio users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Jio AI Cloud welcome offer starting Diwali of this year. जियो की टीवी सर्विसेज में भी अब बेहतरी देखने को मिलेगी। एजीएम के दौरान आकाश अंबानी ने बताया कि एआई के इंटीग्रेशन से अब जियो टीवी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अब जियो टीवी ओएस हेलो जियो के जरिए आपका टीवी देखने का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। We're excited to unveil the next evolution in Jio Home offerings. Indeed, Akash. Building on the success of our home broadband and Jio set-top box, we are now exploring new horizons in home entertainment and smart living. Today, we are thrilled to introduce Jio TV OS, our 100% homegrown operating system for the Jio set-top box. Jio TV OS is made for your big TV screen, giving you a faster, smoother, and more personalized experience. It's just like having a custom-made entertainment system at home. Jio TV OS
supports cutting-edge home entertainment features like ultra-high-definition 4K video, Dolby Vision, and Dolby Atmos. This means you get the best picture and sound quality, just like being in a movie theater, but in the comfort of your living room. And it's more than just a user interface. It's an entire ecosystem that brings together all your favorite apps, live television, and shows in one simple, easy-to-use system. Jio TV Plus brings all your entertainment, live TV, on-demand shows, and apps together in one easy-to-use platform. With Jio TV Plus, you get access to over 860 live TV channels with all leading channels in stunning high definition, plus the best content from apps like Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar, all in one place. And we're optimized Jio TV Plus for super fast channel switching experience. Switching between your favorite channels is now faster than ever, so you won't miss a single moment of action. What makes Jio TV Plus really unique is how it combines content from over a dozen OTT apps, hundreds of live TV channels, and a vast library of on-demand movies and shows, all with a single login. You no longer need to juggle multiple apps or remember different passwords. Jio TV Plus handles it all. Also, a powerful recommendation engine offers personalized suggestions based on your viewing habits, making it easier than ever to find something you will love. And if you miss a show, Catch Up TV lets you go back up to 7 days and catch up on what you missed. With our upcoming Play Pause feature, you will soon be able to pause live TV and pick up right where you left off whenever you are ready. It's all about making TV work for you. जियो फोन यूजर्स के लिए अब एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। वो है जियो फोन एआई कॉल की शुरुआत, जिसमें अब वो जो बातचीत फ़ोन पर होगी उसका टेक्स्ट बन जाएगा, यानी आप अपनी बातचीत को पढ़ पाएंगे और उसकी ट्रांसक्रिप्ट किसी को भी भेज पाएंगे। Jio Phone Call AI, which lets you use AI with every phone call. Jio Phone Call AI can record and store any call in Jio Cloud and automatically transcribe it, which means automatically convert it from voice to text. It can also summarize the call and even translate it into another language. This allows anyone to easily capture and access important voice conversations, making them searchable, shareable, and understandable across languages, all with just a few clicks. Let's dive into the experience to show you how simple it is. Imagine that you are an important phone call. Jio has given a separate dedicated phone number to Phone Call AI. Just add the Jio Phone Call AI's phone number to your call, just like you would another person. Once you hear the welcome message, press 1 to start recording and transcribing the call. Now you can begin your conversation. In the background, Phone Call AI listens and turns everything you say into text, quickly and accurately. And Phone Call AI will periodically announce that the call is being recorded, so everything is clear and transparent to all the parties on the call. At any point, you can pause the transcription by pressing number 2. For example, if you are discussing another topic, Phone Call AI will periodically announce the transcription is paused again for full transparency. Simple, right? And when you're ready to start again, just press number 1 or press number 3 to end when you're done. And that's how easy it is to use Jio Phone Call AI. It's hassle-free, no apps needed, just a simple, reliable phone number to record and transcribe your calls with precision. Whether you're in a one-on-one call or a group conference, or even just making personal notes, Jio Phone Call AI can be your go-to solution for seamless call recording and transcription. मुकेश अंबानी ने ग्रीन और सोलर एनर्जी में के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक सोलर पैनल का कारोबार शुरू कर दिया है। We are now rapidly expanding our investments in bioenergy to reach 55 operating compressed biogas plants by 2025. These 55 integrated CBG plants will increase the incomes of our farmers by converting annadatas to urjadatas,
food producers to energy producers. They will also generate over 30,000 direct and indirect jobs in rural areas, creating a model of all-around prosperity of the rural economy. Additionally, we have initiated an energy plantation pilot on 1,000 acres of arid wasteland to establish a first-of-its-kind integrated CBG plant. This initiative will create a self-sustaining ecosystem by transforming India's large wastelands into productive lands through the cultivation of energy crops. Spearheaded by a dynamic team of technologists and agro-scientists, we are also establishing the world's largest bioenergy deep tech R&D center at Jamnagar. By the end of this year, we will commence the production of our own solar photovoltaic modules. मुकेश अंबानी ने कहा कि KG-D6 से ऑयल और गैस प्रोडक्शन अपने पीक पर पहुंच चुका है। Production from the KG-D6 field is nearly 30 million cubic meters of gas and 22,000 barrels per day of condensate. Our fields now contribute to nearly 30% of India's domestic gas production, supplying a diverse range of customers across sectors such as fertilizer, power, city gas distribution, and various industries. This achievement marks a significant step towards realizing the national goal of increasing natural gas's share to 15% in India's energy mix by 2030. This year, we also celebrated a major financial milestone, surpassing 20,000 crores in EBITDA, with our revenues approaching the 25,000 crore mark. We remain committed to investing in safe and sustainable operations, resource expansion, and additional development wells to sustain and enhance our production capabilities. रिलायंस रिटेल के बारे में ईशा अंबानी पीरामल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 से 4 साल में रिलायंस रिटेल में 2 गुना से ज्यादा ग्रोथ होगी। Reliance Retail recorded gross revenue of 3,06,848 crores, a growth of 17.8% over the last year. We continued our trajectory of strong profit growth, registering an EBITDA of 23,082 crores, up 28.4% year-on-year, and net profit of 11,101 crores, up 21% year-on-year. At 8.5%, the EBITDA margin continued to show improvements and grew 70 bips year-on-year. Our stores witnessed over 1 billion footfalls, and we have had more than 1.25 billion transactions across our channels. Registered customer base crossed a milestone of 300 million customers, nearly the population of the US. We opened 1,840 new stores this year, bringing our total store count to 18,836 stores, with a retail space of 79 million square feet in total. During the year, Reliance Retail undertook an equity fundraise of rupees 17,814 crores, achieving a valuation milestone of $100 billion. नीता अंबानी ने विकसित भारत के लिए स्वदेश की पहल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेश भारत के कारीगरों के लिए उन्नत जीवन की एक कोशिश है। India today has the largest number of young people in the world, with over 50% of our population under the age of 30. We are committed to empowering this generation to become the driving force of a new, resurgent, and unstoppable India, a truly Viksit Bharat. दोस्तों, विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब हम अपने इतिहास को संजोएंगे, वर्तमान को समृद्ध करेंगे और भविष्य को सक्षम बनाएंगे। हमारे देश की महानता का एक अहम हिस्सा है हमारी कला, संस्कृति और परंपराएं।
अब समय आ गया है कि भारतीय विरासत की रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित करे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में हुए ऐलानों से बाजार में बड़ा डिसरप्शन आने वाला है, ये कहना है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह का। Be prepared for a huge disruption. जो भी क्षेत्र में इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं और आज जो घोषणाएं की हैं नए कारोबार को लेकर के अपने नक्शे कदम को बढ़ाने के लिए, तो जितनी भी प्रतिस्पर्धा कंपनी है मेरे ख्याल से उनको अपनी रणनीति पर फिर से विचार विमर्श करना होगा। और क्योंकि जैसे जैसे ये कारोबार जमीनी स्तर पर लागू होता जाएगा, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम से कौन से हुए ख़ास ऐलान, इस पर आज बड़ी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़ इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है, जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और अब आज के आवाज़ अड्डा की बात, जहां होगी बड़ी चर्चा रिलायंस एजीएम पर। और बात आज के बाजार की, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी की शानदार क्लोजिंग हुई है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी लगातार 11वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 349 पॉइंट चढ़कर 82,135 पर और निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 25,152 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 9 पॉइंट चढ़कर 51,153 पर बंद हुआ है। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी रही, निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में तेजी दिखी। रोटेशन के तहत बैंकों में निवेश करना चाहिए, यह कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा का। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गुरमीत चड्ढा ने निवेशकों को निवेश को लेकर सलाह दी है। मुझे लगता है बैंक्स पे और NBFCs पे रोटेट करने का टाइम आ गया है। आईटी में आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली जैसे मुझे लगता है लार्ज कैप में अभी भी टेक महिंद्रा और HCL टेक में थोड़ा सा कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। मिड कैप स्पेस पे KPIT हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो 25-30% ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और थोड़ा सा एक तरीके का IP प्ले है, ऑटो सॉफ्टवेयर प्ले है। टाटा टेक्नोलॉजी मुझे लगता है काफी कंसोलिडेट किया है IPO के बाद। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा और ये पूरा डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस है। IT सिर्फ इसका एक पार्ट है, तो ये थोड़ा ब्रॉडर प्ले है उसमें। और जो थोड़े बहुत ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, मैं इनको भी IT मानता हूँ, चाहे जोमेटो है, PB फिनटेक है। हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा घटा है इस बाजार में, जो कि शायद कम पॉकेट्स में इस मार्केट में, तो सिलेक्टिव हुई है। थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट और IP रिलेटेड प्लेस पे ज्यादा करूंगा। HCL इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, सॉफ्टवेयर बिजनेस उनका लगभग 20% एबिट मार्जिन का बिजनेस हो गया है, जो कि मुझे लगता है आगे सरप्राइज करेगा। बहुत कम IT सर्विसेज के बाद सॉफ्टवेयर बिजनेस है अभी। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में IT और टेक प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ने वाली है। RBI के दिशा निर्देश पर बैंक साइबर सिक्योरिटी और IT इंफ्रा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर अनुमान है कि वो अपने कुल खर्च का 12% से ज्यादा IT और टेक इंफ्रा मजबूत करने में लगाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अगले साल मार्च तक 12,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भर्तियां करने का इरादा जताया है। इनमें से 85% भर्तियां IT ग्रेजुएट्स की होनी है। स्टाफिंग फर्म्स और हायरिंग एजेंसीज भी फाइनेंशियल सेक्टर में हायरिंग को लेकर बुलिश हैं। हर जगह टेक्नोलॉजी के लोगों की रिक्वायरमेंट है और हर इंडियन बैंक या हर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी के लोग बैंकिंग में हायर कर रहा है। रादर ग्लोबल जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक जितने भी हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, सिटी बैंक, JP मॉर्गन, इन सब के बड़े बड़े सेंटर्स हैं यहाँ पे और सबने बहुत सारे हजारों में IT के लोग हायर कर रखे हैं अपने लिए। RBI ने फाइनेंशियल सेक्टर में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता बताया है। ऐसे में सबसे ज्यादा नौकरियां सिक्योरिटी, एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ड्रिवन सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में मिलेंगी। जितने लोगों की जरूरत है वो कम होती जाएगी बैंकिंग सेक्टर में
फाइनेंशियल सेक्टर में, बिकॉज टेक्नोलॉजी उसको टेक ओवर कर लेगी। कई चीजें टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी जो ज्यादा रोबस्ट रहेगी, ज्यादा सेफ रहेगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, पर जिसको सेक्टर नॉलेज है और जिसको थोड़ा भी कंप्यूटर्स के हैंडलिंग और शार्प दिमाग है कि रिस्क फैक्टर्स को वो तुरंत डिटेक्ट कर सके, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो बड़ी तेजी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बीएफएसआई सेक्टर में भर्तियों की रफ्तार धीमी है, लेकिन आईटी और टेक प्रोफेशनल्स की मांग में 6 से 8% की ग्रोथ की उम्मीद है। डिजिटल इकोनॉमी के दौर में कॉमन मैन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां और वित्तीय संस्थान हमेशा साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से रिस्क पर रहते हैं। जाहिर है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर को आईटी ग्रेजुएट्स और टेक प्रोफेशनल्स की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, ताकि वो आरबीआई के रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर्स पर हमेशा अपडेटेड रह सकें। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, कई खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में हालात इतने बुरे हैं कि जान पर बनाई है। बाढ़ में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और तटरक्षक बल का प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान जारी है। इसमें अब तक करीब 17,800 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने की अनुमान दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है और कच्छ और सौराष्ट्र के ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि अगले 24 से 36 घंटों में डिप्रेशन पाकिस्तान की ओर बढ़ जाएगा और इसका असर कम होने से गुजरात को भारी बारिश से राहत मिलेगी। और बाढ़ से हालत बेहद खराब है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई सर्वेक्षण किया है। और गुजरात में कई जगह खेत तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने सानंद के पास ऐसे ही खेत पर जाकर जायजा लिया। देखिए, इस वक्त हम कोई तालाब, नदी या तो ऐसी केनाल में नहीं उतरे हैं, लेकिन ये खेत है। आप देखिए कि सब अभी तो खेत की यहाँ शुरुआत है, तो कितने गहरे पानी में हम उतरे हैं। आगे भी देखिए, ये सारा खेत का नजारा है। खेत में इतना सारा पानी भरा है। ये साणंद का कुंडल गांव है और आसपास का पूरा एरिया है वो उनकी खेती बर्बाद हो गई है। यहाँ पर डांगर यानी कि धान की खेती होती है और सबको यहाँ से सप्लाई भी होता है, लेकिन भारी बारिश और फ्लड के कारण ये सारे खेत है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो खेत है वो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं। तो अभी स्थिति काफी खराब है। हमारे साथ कई सारे किसान हैं जिन्होंने यहाँ खेती की प्रयास किया था एक अच्छी उम्मीद के साथ कि हम अच्छी बुआई करेंगे और अच्छा हमारा क्रॉप भी होगा, लेकिन आइए चेक करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, आपने यहाँ क्या बोया था और क्या हालत है अभी? अभी फसल बोई थी, पर अभी पूरी फसल भी बर्बाद हो गई है। 15,000 का खर्चा हुआ है और तो भी यहाँ कोई देखने वाला सरकार कोई का अधिकारी कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। 5-6 दिन से तो बिजली भी नहीं है, तो भी शायद नहीं आते। बार बार कॉल करने के बाद भी नहीं आते। हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी नहीं आते। इसलिए ये सिर्फ आपके गांव में है कि आसपास का पूरा एरिया है वहाँ पानी भरा? पूरा आसपास का पूरा एरिया है पानी भरा है। हाँ, पूरा पानी भरा हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।